Hmm. Good morning, everyone. Today's study is the classification of contracts. Okay, the first is term transaction. Term transaction is a time transaction. It means the basic times are fixed. In this time, you have calculated the call. Is time by time to time you calculate the call, and the call options are decided and the fixed period after the specific time period are over. It means 2 months, 3 months, and all. For example, look here. Option which is provided to buyer with the right to buy a specific underlying assets at the predetermined price with specific period. Okay. Then the next point is the terms of nature experience. Terms of nature experience. अब nature experience में क्या होता है? रीजन नेचर के हिसाब से जब तुम्हें जरूरत है उस टाइम पे टाइम ऑफ यू बिगिनिंग टू वांट you begin to want. Okay, the option control which is can be expire of any date up to the maturity date are called as an American option. Option contract which is be expired only the maturity date are called European option. और कब तक जब तक मेच्योरिटी डेट का एक्सपायर नहीं होता मेच्योरिटी डेट आती नहीं है लास्ट डेट आती नहीं तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अमेरिकन ऑप्शन देन उसने एक यूरोपियन ऑप्शन दो ऑप्शन दिया है दो लैंग्वेज बताया उसने ओके then the next point is in terms of nature of market. अब nature of markets में क्या क्या होते हैं तो option contract is called the OTC and ETD. OTC means option to the contract and ETD means look here एक nature to exchange is a ETC and OTC option to transaction. Okay. Then the next 2 point are the next new point is terminology used in option contract. Which one terminology used? The first is buy of an option. Buy of an option. The buyer of an option the one who are the pay the option premium by premium by the right but not obligation to exceed the option of the seller return. Seller or writer. Writer means bill writer. Okay. The buyer of an option is in one who are the paying the option premium. बायर कौन होता है एक ही ऑप्शन होता है जो पेमेंट करने वाला है जो खरीदने वाला है और दूसरा इस सेकंड ऑप्शन क्या होता है जो एक्सपायर किया जाता है इज अ सेलर जो बेचना एक है जो खरीदना जाता है एक है जो बेचना जाता है ओके ऑप्शन इज अ प्राइस ऑप्शन इज अ प्राइस इन प्राइस which is the option buyer pay to the option seller it is called the premium. ओके प्रीमियम किसे कहते हैं एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी पीरियड के टाइम जब पेमेंट करने वाला पेमेंट कौन करेगा जो खरीदता है द पर्सन इज बायर इसलिए बोला ऑप्शन इज अ प्राइस कीमत जो टाइम टू टाइम देने वाली विच इज द ऑप्शन बाय पे ऑफ द ऑप्शन सेलर किसको देता है वो सेलर को देता है ओके ऑप्शन व्हेन कॉल और पुट पे द राइटर ऑप्शन इज राइट टू कन्वेंस द ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन उसमें वेरिएबल लिए जाते हैं फंक्शन ऑफ वेरिएबल current stock price, strike price, time expectancy, voluntary interest rate. It means जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट चलता है जैसे दो मॉडल पहले हमने सीख चुके ओके देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द बायर pays the premium to sell to seller which is belong to the seller when whether the option is expired or not if the owner is option decided in no expire the option right related to the premium while if the option is exceed इट मीन्स अभी बायर के पास ये ऑफर होता है कि इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को दिस कॉन्ट्रैक्ट को हाउ मच यू एक्सीड करे इट मीन्स मैच्योरिटी पीरियड आने से पहले यू हैव टू कॉल टू इंक्रीज द योर वर्क ओके दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन डेट what is the expiration date the date specified in the option contract no expiration date the expiry date एक्सिस डेट द स्ट्रिक डेट और द मैच्योरिटी डेट कौन सी डेट जो डेट खत्म करने वाली मेच्योर करने वाली लास्ट डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एक्सपायर डेट इज डेट विच इज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इट इज द लास्ट डेट विच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सचेंज अब एक्चुअल में वो डेट कौन सी होती है मंथ इन थर्सडे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट थर्सडे इज योर मैच्योरिटी डेट एज पर हमने इससे पहले सीखे देन स्ट्रिक प्राइस व्हाट इज स्ट्रिक प्राइस द प्राइस स्पेसिफाइड इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट or known as the street price or the express price. जो स्पेसिफाई तुम्हारे गुड्स की जो मेन कॉस्ट होने वाली है बिफोर इंक्रीजिंग एंड बिफोर डिक्रीजिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रीट प्राइस ओके देन द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट ऑफ एन ऑप्शन राइट ऑफ एन ऑप्शन मीन्स ऑप्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या लिखने वाले राइट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले द राइट ऑफ अ कॉल पुट ऑप्शन इज
one who receive the option premium and thereby obligation to seller the assets to buy express option. It means इसमें क्या मेंशन करने वाला है, क्या लिखा हुआ रहेगा कि the person ने जो तुम्हारे गुड्स खरीदने वाला है. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन कौन होता है, किसके पास होता है? द कॉल ऑप्शन गिव्स टू द बायर to the right to purchase a specific amount of underlying asset from the option right to seller to specific price. कॉल ऑप्शन में क्या होता है, किसको कॉल करने का होता है, यानी गुड्स मंगाने वाला अब कौन होता है, बायर. और एक कॉल किसको जाता है, टू सेलर फॉर द स्पेसिफिक प्राइस अंडर द स्पेसिफिक प्राइस विच रिटर्न इन योर कॉन्ट्रैक्ट. ओके. For the call option S is greater than X, the option would be the uh, option which obtained at the loss equal to premium C. Hmm? Then the uh, rationale of buyer or call. Rationale. अब rationals क्या है, देखो there are the globally three reasons why the optional would be buy a call. Option call. Call option instant the buy the underlying asset. Underlying the assets follow. First क्या है, leverages reason. Leverages यानी the working low cost leverages. Since the outlay of funds is only to extent of premium payer to the option seller. The operation is able to लीवरेजेस इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, अब इस रिसोर्सेज के ऊपर हमें बाय कितना फाइनेंस है हम उसका कैलकुलेशन करते हैं. प्रॉफिट लीवरेजेस, तो वर्किंग लीवरेजेस, वर्किंग कैपिटल लीवरेजेस, और उसके ऊपर से हम काउंट करते हैं. देन हेजिंग, इट मींस रिस्क. The hedging existing risk, the trading with the objective to reduce or the control the risk to call the hedging. An operation with the short assets experience could be buy or call option are hedging tools. And the third option, third rationale is arbitrage operation. Arbitrage involves the buying at low price and selling at higher cost. एवरेज किसे कहते हैं, लो कॉस्ट खरीदना और हाई कॉस्ट सेल करना. एंड एनी अदर ट्रेड ऑप्शन एवरेज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी by exposing the pricing influence which is why the existing within the market between two market produce such as the operation of the market player. Okay. इसमें क्या होने वाला है, एवरेज में देखो ये तीन लिवरेजेस है. फर्स्ट लिवरेजेस में फाइनेंस को देखा जाता है. फ्रॉम दिस फाइनेंस फ्यूचर रिस्क को कंडक्ट किया जाता है, इसे हेजिंग कहेंगे. ऑन देन दिस रिस्क वी आर द कैलकुलेट low cost product and then sell high cost product. It's called averaging. Okay. Then the put option. Put option यानी अभी buy करना ऑप्शन है. A put option give the buyer the right but not the obligation to sell specific amount of underlying asset. The option right as the asking price anytime during the current option. One against the decision of exchange the right understand the option would depend the market price of the underlying asset expiry company to the strict price. अब इसमें क्या होता है, पुट ऑप्शन गिव्स टू बायर टू राइट बट नॉट टू ऑब्लिगेशन. खरीदो, पुट करो बट नॉट सेल टू द हाई. सेलिंग के टाइम पे हाई रेट में नॉट सेल. स्पेसिफिक अमाउंट आर गिवन, यानी 15 रुपए में खरीदो, 15 रुपए में ही बेचो. इट कॉल अ पुट ऑप्शन. ओके. हियर द loss equal to cost, you know, S equal to C. It is a put option. Second one, okay. X and C and S are same. Then the rations क्या देखो इसके अंदर, जैसे हमने पुट ऑप्शन से पहले जो स्टडी किए थे, रेशंस टू कॉल ऑप्शन. अब पुट ऑप्शन के लिए जो रेशंस रहेंगे क्या है, द फर्स्ट शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल क्या होता है, शॉर्ट यानी सेलर, तो सेलर का सेल. Yeah, short and long, the two concepts, seller and buyer. Okay, you know, in your commodity market, the the operator enter into the sale. Operator enter into sale transaction without having the asset in the event of a fall is the asset price. He can buy the asset at a low price and can deliver against the sale contract. Thus, the making profit equal to the fall in the price. शॉर्ट टर्म क्या होता है, हम छोटे पीरियड के लिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो खरीद सकता है, बट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही उसको सेल करना पड़ेगा. यू ऑल्सो फाइंड आउट द लेस देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बट नॉट देन हायर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ओके. रिटर्न नेट कॉल. रिटर्न नेट कॉल में क्या होता है, द अपॉर्चुनिटी वुड राइट अ कॉल ऑप्शन विच इज सिमिलर टू द सेलिंग शॉट. The only difference between that the loss in the event is apparent. Then purchase put option. Purchase put option में क्या होता है,
The purchase of put option is the most viable option compared to the either going to the shorter return net call option. This reason is that his outlay to buying put option restricted to the premium which represented the maximum possible loss in case wrong view of rate movement. यानी परचेस के अंदर जो मूवमेंट होने वाला है लो कॉस्ट परचेस एंड हाई कॉस्ट सेल, इन मूवमेंट के बीच में जो चेंज होने वाला है इज हाईली पॉसिबल है कि लॉस इन केस हो सकता है इफ अ रॉन्ग ट्रांजैक्शन आर डन एंड दिस ट्रांजैक्शन के ऊपर उसने बताया हुआ है. देन द स्पेशल फीचर्स, क्या फीचर्स होते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. नंबर वन, an option contract can be thus view as a combination of two contracts. क्या होते हैं? दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. an agreement between the buyer and seller. दो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाले हैं? फर्स्ट इज an agreement between the buyer and seller of right for which consideration which consideration of premium is paid. ये कौन पे करेगा? बायर और सेलर. और कैसा पे किया जाए? द कॉन्ट्रैक्ट आर डन ऑन टाइम ऑफ. सेकेंड कंडीशन क्या होता है? ऑन existing the right contract existing the right of buyer to the option to entitle either buy or sell specific amount underlying the asset. उसके बाद दूसरा क्या रीजन होता है कि तुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है. तो ये खरीदना होगा तो कितना खरीदना और किस पे करना है, कौन सी असेट खरीदनी, द असेट आर फिक्स. ओके. Then the next point is the payoff system. Let's do the come point. Next point, it is a trading and settlement. What are the option contract with trading and settlement? The life on the option contract specify when the entering the contract in India. In India, the maximum contract cycle is the option in 3 months. Maximum कितना होता है? 3 months, which is means the every such contract must come to the close with the time. अब टाइम के साथ क्लोज होते हैं. 3 मंथ कह रहे हैं लास्ट मंथ के थर्सडे को. Okay, the first is by existing the option. In case the American option, the holder can exceed the right under the option, the time and the seller require the give to the tech delivery against the strict price. strict price के हिसाब से जो फिक्स लो कॉस्ट के प्राइस है लास्ट कॉस्ट के हिसाब से हमें डिलीवर करना होता है. एंड अगर अगर एबडोटिंग ऑप्शन होगा तो एबडोटिंग में क्या होता है? होल्डर नॉट ऑब्लिगेट टू अंडरटेक द ट्रांजैक्शन and may the let price expire without any action. Contract automatically cases the maturity. Maturity fix होती है ऑटोमेटिक और उसमें जो कॉस्ट है वो फिक्स होता है. ओके. एंड द नेक्स्ट इज बायर रिवोल्यूशन सेलिंग सिस्टम होगा. तो बायर रिवोल्यूशन सिस्टम, द ऑब्लिगेशन अंडरटेक कॉन्ट्रैक्ट may be nullified by the entering into the offer contract, which is the credit obligation options, that is the institution option contract. अब देखो यार 3 पैटर्न बताए गए. फर्स्ट एग्जिस्टिंग ऑप्शन. एग्जिस्टिंग में एग्जिट किया जाता है, इन्वॉल्व होते हैं सेलर एंड बायर आल्सो. अबैंडन में क्या होता है? अबैंडोनिंग सॉरी अबैंडोनिंग द ऑप्शन में क्या होता है? होल्डर नॉट ऑब्लिगेट. होल्डर यानी सेलर नॉट एक्सेप्टेड कि उसको क्या खरीदना है क्या बेचना है. बट बायर विदाउट एनी एक्शन द कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली केसेस टू मेच्योरिटी एंड मेच्योरिटी तक आ जाता है और उसको पेड करना पड़ता है. और सेलिंग ऑप्शन, बाय सेलिंग ऑप्शन में क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कॉन्ट्रैक्ट में भी न्यूट्रीफाई होता है इनटू द ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें क्रेडिट क्या किया जाता है? ऑब्लिगेशन यानी रेट सिस्टम, और रेट को इंक्रीज किया जाता है. ऑब्लिगेशन इज द हायर रेट सिस्टम. ओके. एग्जांपल आर टेकिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज speculation with option. Speculation with option. This simple format of speculation transaction with option would be to buy a call when bullish or buy a put where bearish. In both of case, the loss is limited to premium trade at the option, where is the possibility of profit. अब इस टॉपिक में क्या बताया हुआ? इंडस्ट्री पॉइंट स्पेशलाइजेशन किया जाता है. स्पेशलाइजेशन विद ऑप्शन. अब ऑप्शन के साथ स्पेशलाइजेशन रखी जाती है. स्पेशलाइजेशन में क्या किया जाता है?
सम स्पेशलाइजेशन में कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इन दिस स्ट्रेटजी बायर एंड सेलर बोथ आर गेटिंग द प्रॉफिट होना चाहिए। इट मीन्स बायर को प्रॉफिट क्या होता है, द सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड, एंड सेलर को प्रॉफिट। तो दोनों तरफ किया जाता है, और इस पर जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट के जो रेट होते हैं आर द सेट किए जाते हैं। Okay, the difference between the speculation option and other derivative is the option is required to unfought payment premium, unfought upfront payment of premium, which is non-recoverable option providing in the bill. अब ये सेटलमेंट वाली होती है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेयर किया नहीं रहता, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके, क्योंकि अंडरलाइन असेट होगा, अंडरलाइन अमाउंट रहेगी, तो हमें उतना पे करना पड़ेगा। Then the point is trading strategy with option. अब इसमें क्या होती है ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी? The option strategy is used for the trading as well as hedging. ट्रेडिंग तो किया जाता है, इसके साथ हेजिंग यानी हाई कॉस्ट भी किया जाता है। इफ द ऑब्जेक्टिव इज रिस्क कंट्रोल, दे आर कॉल्ड हेजिंग। रिस्क कंट्रोल रहेगा तो इट्स कॉल्ड हेजिंग, यानी रिस्क उठा रहा है हाई रेट बनाने के लिए। हेजिंग स्ट्रेटेजी and where the objective is benefit in specific view market, they are called trading strategy। यानी हेजिंग एक्टिविटी स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर अगर हम स्टडी करेंगे तो हेजिंग स्ट्रेटेजी इट इज रिस्क उठा के बेचना, लो कॉस्ट चीज पर हाई कॉस्ट बेचना, और पहले से ही लो कॉस्ट है और हाई कॉस्ट में सेल हो रही है गेटिंग प्रॉफिट, इट इज ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। Then types of option multi-streak, different birds, alternative expiry date. They are the contained parameters to calculation the trading strategy. Okay. Then the next point, stages. The stages of strategic activity. The first stage क्या, long and short straddle, long short and long and short long. अब इसमें क्या होता है? The stages standard strategy based on the voluntary play. A long standard is used when the stock price indicated index the expected to show large movement, high volatility. Whenever the short standard is used, when the market is expanded, exactly the range bond price is movement. The long standard strategy involves the buying a call as well as put on the same stock और इंडेक्स मार्केट फॉर द सेम मेच्योरिटी स्ट्राइक प्राइस। अब इसमें क्या होता है, तो सेम डेट सेम पीरियड फॉर लॉन्ग लिस्टिंग लिया जाता है और इस पर से उसको खरीदा जाता है। ऑन दिस पॉइंट द कैलकुलेशन इज डिपेंड ऑन द अंडरलाइन स्टॉक एंड विच इज जो हम खरीदने वाले पुट करने वाले एज वेल एज बाय। ओके, व्हेन टू यूज दिस वॉलंटरी सिस्टम, द नंबर ऑफ रिस्क लिमिट टू द इनिशियल प्रीमियम पीरियड, इनिशियल जो प्रीमियम होते हैं उसको रिस्क कहा जाता है, और रिवॉर्ड अनलिमिटेड। हम प्रीमियम भरने वाले और रिस्क है कि हमें प्रीमियम भरने लाइक LIC पॉलिसी, पहले हमें प्रीमियम भरने होते, बट रिवॉर्ड इट मीन्स मेच्योरिटी टाइम मिलने वाली पेमेंट इज डिराइव्ड। ओके, एग्जांपल आई टेकिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, देन द शॉर्ट स्ट्रेटेजी क्या बोली है इसके अंदर? द शॉर्ट स्ट्रेटेजी इज द ऑप्शन ऑफ लॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी to adopt when the investor expected the low price voluntary. Investor sale as call and put then the same stock in the same maturity and the strict price. स्ट्रिक्ट प्राइस को फ्यूचर में करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लो कॉस्ट में। इज शॉर्ट स्ट्रेटेजी। लॉन्ग स्ट्रेटेजी में लॉन्ग रेट रखा जाता है, और जो स्टैंडर्ड क्या होता है कि लॉन्ग रेट है तो लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको बेच सकते हैं कि अभी नहीं प्रॉफिट हुआ तो इन आता है प्रॉफिट जो रहता है शॉर्ट पीरियड लॉन्ग थोडक्या वेळेमध्ये प्रॉफिट होऊ शकतं। ओके, या रिस्क अनलिमिटेड होता है क्योंकि शॉर्ट पीरियड यानी विदिन अ मंथ, विदिन अ ईयर, विदिन अ वीक, विदिन अ क्वार्टर हमें बेचना होता है। एज लिमिटेड रिवॉर्ड अनलिमिटेड रिसीव होता है, अगर बिक गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ओके, इसका एग्जांपल हम बाद में लेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द सेकंड स्ट्रेटेजी। द सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है? द लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग स्ट्रेटेजी। लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग स्ट्रेटेजी, इससे पहले शॉर्ट स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी है। अब लॉन्ग स्ट्रेटेजी में क्या होता है? स्ट्रेटेजी the strategy also based on voluntary play. This strategy is buy of the one slide out of money OTM, but any strategy out of money OTM call the same underlying stock, same expense date, sees both option purchase are OTM. It means यहाँ सेम रहने वाला है जैसे शॉर्ट में, बट द लॉन्ग पीरियड के लिए यूज किया जाता है। हियर द रिस्क आर लिमिटेड, रिस्क आर लिमिटेड बट रिवॉर्ड आर अनलिमिटेड। रिस्क आर लिमिटेड,
यूज कैसे किया जाता है? इन्वेस्टेड एक्सपेक्टेड द अंडरलाइन स्टॉक। इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड क्या होता है? जो चीज मंगाए वही आए, टू द एक्सपायर वेरी हाई लेवल ऑफ वॉलेंट्री। लेकिन वो एक्सपायर कब होता है? कि हाई लेवल, ज्यादा यूज करने के बाद वो एक्सपायर होना चाहिए। ओके, देन थर्ड स्ट्रेटजी, द स्प्रीड। स्प्रीड इज बुल स्प्रीड एंड बियर स्प्रीड। बुल और बियर, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बुल मीन्स अ पर्सन हु वर्क लाइक बुल। अब उसमें क्या रहता है? टू एजेंट पैटर्न आ रही है इंडेक्स मार्केट, एक बुल एंड बियर। बियर यानी जो लो कॉस्ट में खरीदता है, भालू की तरह, जो 6 महीने सोता है 6 महीने जागता है। इसी तरह ये भी जो बिफोर बिगिनिंग के 6 मंथ होते हैं आधीचे, ते त्याच्यासारखा कोळ्यासारखं काय करतो? आधीच्या 6 महिन्यात स्वस्त दरात विकत घेतो आणि पुढचे 6 महिने थांबतो की रेट वाढेल आणि मग विकतो। म्हणजे 6 महीने झोपतो और 6 महीने जागतो। और बुल ये एक्टिव रहता है, सुबह खरीदेगा शाम को बेचेगा, सुबह खरीदेगा शाम को बेचेगा, और फिर उससे प्रॉफिट करते रहेगा। A bull call a separate or construction when the investor trade the monetary billion on stock. The bull call spread in the construction of buying one in time money ITM call option। इन टाइम मनी जब है वो उसी वक्त, जैसे मैंने बोला, वो एक्टिव रहता है। एज कंपेयर टू बुल में क्या होता है? देखो, रिस्क क्या होता है इन्वेस्टर को? मॉडिफाई बिलीव द रिस्क लिमिटेड टू द इनिशियल पीरियड और रिवॉर्ड लिमिटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट। यानी अभी वो खरीदता है बेचता है, खरीदता बेचता है, तो रिवॉर्ड इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट एंड सेल ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी। ओके, एंड देन स्ट्रेटजी फॉर बटरफ्लाई, ये न्यू पैटर्न है बटरफ्लाई। अब इसके ऊपर स्टडी करेंगे। बटरफ्लाई क्या होता है? देखो, लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई। अब लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई क्या होता है? देखो, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई इज टू बी द adopted when the investor is adequate very little movement in the strike price. The investor is looking to gain for the low voluntary at low cost. A long butterfly is similar to the short standard expect to the loss are limited. द स्ट्रेटजी, अब यहाँ देखो हर जगह लॉन्ग और शॉर्ट की इसमें डिस्कस करते हैं। उसने क्या बोला हुआ है? इफ एनी मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ एनी मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो रिस्क आर लो, रिस्क आर लो। एज द शॉर्ट टाइम रिस्क आर हाई, कि अगर वो नहीं बिका इन ए शॉर्ट टाइम देन इट इज स्क्रैप। तो उसकी मूवमेंट होता है और उसके ऊपर से हमें वो सेल्फ कंडक्ट करना होता है। अब इसके अंदर रिस्क क्या होता है? नेट डेबिट पीरियड, यानी जितना वक्त जाता है ये रिस्क होता है, क्योंकि हाई हाई लॉन्ग पीरियड होता है तो रिस्क आर हाई। देन रिवॉर्ड डिफरेंट बिटवीन द एडजस्टेड स्ट्रिक्ट मिनिमम इन नेट, यानी हम जितना खरीदे, रिवॉर्ड क्या है? जितना हम सेल किए, प्रॉफिट लेस डेबिट 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 या नेट डेबिट। नेट डेबिट क्या होने वाला है? रिस्क, रिस्क उसमें से लेस करने का। Okay, all of you. So we have today studied the number of movements. Out of that, the first point we are explained. The first is classification of contract. Contract कसे असतात? Option contract ते आपण स्टडी केलं. In this term of transaction की स्टडी हुई, जिसके अंदर हमने क्या सीखे? कॉल ऑप्शन किसे कहा जाता है? Then we have studied term of nature. इस टर्म्स को कैसे कैसे कॉल किया गया है? The first option is providing the buyer right to buy specific time. It is a call option. स्पेसिफिक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल ऑप्शन की स्टडी की है। देन नेचर के हिसाब से अमेरिकन में क्या क्या, अमेरिकन ऑप्शन में क्या बोला हुआ है? इट इज कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायर, एक्सपायर होने तक जितने हम कॉल करने वाले, इट इज अ एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट। देन सेकंड ऑप्शन हमने क्या स्टडी है? टर्म्स ऑफ नेचर मार्केट। और नेचर मार्केट में हमने टर्मिनोलॉजी यूज की। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है? द फर्स्ट इज बाय टर्मिनोलॉजी, यानी खरीदना। देन ऑप्शन प्राइस, प्राइस के ऑप्शंस देना। उसके लिए क्या क्या किया जाता है? देन एक्सप्रेशन डेट, एक्सप्रेशन डेट एंड लास्ट डेट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर हमने स्टडी की। स्ट्रिक्ट प्राइस, स्ट्रिक्ट प्राइस क्या होती है? लास्ट, लो प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मेन प्राइस। ओके, द रिटर्न इन ऑप्शन, ऑप्शंस में क्या लिखना चाहिए, उसके ऊपर स्टडी की। व्हाट इज कॉल ऑप्शन, इसके ऊपर हमने थोड़ी स्टडी की। यू मस्ट रीड दिस। पीडीएफ मैंने सेंड किया हुआ, आई थिंक वैभवी को, उससे कलेक्ट कर लेना। और किसी को चाहिए तो पर्सनल मुझे मैसेज करना, मैं उनको भी फॉरवर्ड करूँगा। इट इज योर थर्ड मॉडल, द स्मॉल मॉडल ऑफ दैट। इसमें स्मॉल कंसेप्ट है। देन लीवरेजेस ऑफ रिसोर्सेज,
अब रेशनल बायर के लिए क्या होता है, जो खरीदता है उसके लिए तो क्या देखता है, पहले लिवरेजेस यानी फाइनेंस देखता है, पैसे कितने, हेजिंग यानी रिस्क क्या है वो गुड्स खरीदने में, और एवरेज इन फ्यूचर रिस्क रेट क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर अगर रेट इंक्रीज हुआ तो कितना होगा इफेक्टेड ऑन। देन पुट ऑप्शन यानी सेलर जो पुट करता है, बेचने के लिए तैयार होता है, उसके लिए क्या है वो कंसिडरेशन स्टडी की है। देन व्हाट इज शॉर्ट सेल एंड लॉन्ग सेल, रिटर्न उसके अंदर क्या रेशन है उसकी हमने स्टडी की है। रैशनल और बाइंग ऑप्शन में शॉर्ट सेल, राइटिंग इज निकल, ओके। देन परचेस ऑफ पुट ऑप्शन, परचेस ऑफ पुट ऑप्शन के ऊपर हमने स्टडी की है। देन स्पेसिफिक फीचर्स क्या है ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, तो पहला क्या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का फीचर्स हमने उसकी स्टडी की है। तो फर्स्ट इज पे ऑफ सेमिस्टर है, पे ऑफ सेमिस्टर के बाद जो सेकेंड पॉइंट है मनीस ऑप्शन, मनीनेस ऑप्शन। अब इसके अंदर क्या है, दिस मार्केट रेट ऑफ एक्सपायर डेट इज मोर देन द स्ट्रिक प्राइस, एक्सपायर डेट से भी स्ट्रिक प्राइस मोर होती है। देन द कॉल ऑप्शन आर एग्जिट वेदर द पुट ऑप्शन और एबनॉन। अब इसमें फिर वो डिसाइड करता है कि एबनॉन को स्किप करे कि पुट ऑप्शन को ले, इट इज अ मनी ऑप्शन। देन द सेकेंड इज पे ऑफ, प्रेलोड फॉर बाइंग एंड सेल, पे ऑफ करना, पेमेंट कैसा किया जाए इसको रोल किया जाता है, इसके अंदर स्टडी की जाती है, पे ऑफ को ग्राफिकल शो किया जाता है। देन पे ऑफ प्रोफाइल इज फ्रॉम द रिटर्न, ये मैं लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली ऑन बोर्ड एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी इधर इग्नोर किया। देन हमने ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट के ऊपर स्टडी किया, व्हाट आर द ट्रेडिंग एंड व्हाट आर द सेटलमेंट। इसके अंदर द लाइफ ऑन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक क्या है उसके अंदर, फिर एग्जिस्टिंग ऑप्शन क्या है, एवरीडे ऑप्शन क्या है, रिमेनिंग के टर्म क्या होता है, इन तीन कंसिडरेशन के ऊपर हमने स्टडी किया। ओके, देन वी आर स्टडी द स्पेक्युलेशन विद ऑप्शन। अब स्पेक्युलेशन ऑफ स्टडी में क्या हमने स्टडी किया, द सिंपलिक फॉर्मेट ऑफ स्पेक्युलेशन क्या होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखे जाते हैं, उसके अंदर स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं एंड ऑल। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमने क्या की कि टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉल एंड पुट्स दो में से एक हो सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रिक्स होते हैं, डिफरेंट पुट होता है, डिफरेंट पुट एंड कॉल होता है। देन इसके अंदर हमने फर्स्ट स्ट्रेटेजी लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग स्टैंडर्ड क्या होता है इसकी स्टडी की है। देन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, उसके अंदर लिस्ट क्या होता है, रिवॉर्ड कितना मिलेगा उसकी स्टडी किया। देन द नेक्स्ट स्टडी इज शॉर्ट स्टैंडर्ड, शॉर्ट स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, शॉर्ट स्टैंडर्ड में शॉर्ट स्टैंडर्ड में अपॉर्चुनिटी कितनी होती है लॉन्ग एज कम्पेयर टू लॉन्ग स्टैंडर्ड, इसका हमने स्टडी किया, दोनों ही वॉलेंट्री पैटर्न होता है। देन द स्टडी के बाद हमने द इन्वेस्टर अटेक्शन द अंडरलाइन एसेट, रिस्क कितना होता है, लिमिटेशन ऑफ प्रीमियम कितना होता है उसकी स्टडी की है, और ऑल ओवर स्टडी स्टडी को हमने प्रूव किया। इन शॉर्ट अगर तुम पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन हुआ है इसके ऊपर समझना चाहोगे, अगर बहुत टफ जा रहा है तो पढ़ने से पहले हमें ये याद रखना है, वी आर स्टडी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट। आम्ही जर आपण कॉन्ट्रॅक्टची स्टडी करतो तर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये मेन गोष्ट काय असणार आहे की कॉन्ट्रॅक्टचे चार गोष्टी असतात, एक तो वस्तू घेण्याची, वस्तू विकण्याची रेट, वस्तूचा टाइम पिरियड, आणि त्याला त्याने ह्याच्यामध्ये एक कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह तर कमोडिटी मार्केटच्या लँग्वेजमध्ये एक्सप्लेन केलं आहे, आणि ती नावं तुम्हाला कधी समजतील, मी कितीही एक्सप्लेन केलं जसं पाडून नाही समजणार, यू मस्ट रीड इट, you must read it, you understand it, what sentence are saying. Okay, that's the point. Then the next point, त्याच्यानंतर आपण स्ट्रेटेजीज बघितले आणि त्या स्ट्रेटेजीवर आजचा पण टॉपिक संपवलेला आहे. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू.